Good morning students. In the last lecture we have started the chapter number 4. 3 topics we already have done: abundance of carbon, second electronic configuration of carbon, and third bonding in the carbon compounds. Today we are going to take 2 topics. First, allotropes of carbon, and second is versatile nature of carbon. These 2 topics we will take today. First, allotrope of carbon. What is allotrope? What is allotrope? Allotropes are the compounds which is made up by the similar elements which has similar chemical properties but different physical properties. Means compounds of an elements which are similar in chemical properties but vary in physical properties. We will take here carbon allotrope, crystalline carbon allotrope. When we will take crystalline carbon allotrope, then it has 3 categories. How many categories it will take? 3. First is diamond, second is graphite, and third category is fullerene. Carbon allotrope has 2 categories. First is crystalline, second is non-crystalline. In this chapter we will discuss only crystalline carbon allotropes, and it has 3 categories. First is diamond, second is graphite, third is fullerene. Just check out diamonds features and characteristics, how it will form. Why we are considering it as a carbon allotrope? Because it is made up only by carbon. Diamond. Basically, diamond is a hardest compound in the nature up to now. अब तक जितने भी कंपाउंड्स हम नेचर में देखते हैं उनमें से नेचुरली अकर होने वाला जो कंपाउंड है जो कि सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट नेचर शो करता है, दैट इज डायमंड. मीन्स इट इज़ अ हार्डेस्ट कंपाउंड of the nature. Why we are calling it as a hardest compound? Why we are considering it as a hardest compound? Which feature of diamond gives it as a hardest nature? Its structure, when we will draw, that you will get that one carbon is attached with the another carbons, another 4 carbons, because in the last video we already have discussed about the carbon valency. 4 valencies means 4 electron will be shared by the one carbon with the another element. It may be carbon, it may be another one. But here diamond, when we will talk about the diamond structure, then we will draw the structure with the carbon and another valencies
another 4 valencies of the carbon will be completed by the another carbons. Means basically it is made up by the pure carbon compound, it may called, because it is made up by pure carbon. Carbon is attached with the another 4 carbon. It has 3-dimensional structure. It has 3-dimensional structure. Due to this 3-dimensional structure, it shows hardest nature. Due to this 3-dimensional structure, it shows hardest nature. और आपको पता ही है कि डायमंड कहाँ मिलता है, ये आपको पता है, कोल माइंस में मिलता है। क्यों मिलता है, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कॉज है उसका। जैसे कि अभी स्ट्रक्चर देखिए कि प्योर कार्बन कंपाउंड मान सकते हैं इसको। रीज़न कि इसकी जो पूरी स्ट्रक्चर होती है वो कार्बन से ही मिलकर बनी होती है। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बन का सोर्स होगा वहीं पर डायमंड का फॉर्मेशन होगा, और कोल माइन से बेटर कार्बन सोर्स और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ कोयला होता है। दूसरी जो कंडीशन होती है जो कि डायमंड के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर होती है, वो है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। मीन्स इफ हाई टेम्परेचर and high pressure is given to the pure carbon, then it will form diamond. क्या फॉर्म करेगा, डायमंड फॉर्म करेगा। किसी भी प्योर कार्बन कंपाउंड की अगर फॉर्मेशन हो रही है और उसको हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे उसे प्योर कार्बन को रखा गया है, देन इट विल फॉर्म डायमंड। तो डायमंड का फॉर्मेशन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होता है, और कैसी कंडीशंस के अंदर हो रहा है वो आपको पता चल गई। और क्या चाहिए होता है, बिल्कुल प्योर कार्बन चाहिए होता है। सो इन द कोल माइंस प्योर कार्बन इज एग्जिस्टिंग एंड हाई प्रेशर जो कि अर्थ क्रस्ट प्रोवाइड कर देता है, और जैसे ही आप गहराई में जाते हैं, डीप में जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर भी इंक्रीज होता चला जाता है। सो वी कैन से दैट इट इज़ अ गुड एंड फेवरेबल कंडीशंस विच इज़ प्रोवाइडिंग बाय द नेचर इन द कोल माइंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डायमंड। नेचुरली तो ये डायमंड बन ही रहा होता है, बट आर्टिफिशियली बाय द मैन मेड, क्योंकि आपको पता है कि हर एक रिएक्शन में, हर एक जो नेचुरल रिएक्शन चल रही हो उसकी थ्योरी को समझने के लिए ह्यूमन क्या करता रहता है, अपनी खुद की प्रैक्टिस करता रहता है। तो उसने डायमंड फॉर्मेशन के लिए भी एक्सपेरिमेंटली उसने नेचुरल डायमंड फॉर्मेशन को देखकर उन्हीं कंडीशंस को प्रोवाइड करके आर्टिफिशियल डायमंड बनाने के लिए भी सोचा। तो प्योर कार्बन लेकर, हाई प्रेशर देकर, हाई टेम्परेचर देकर जब डायमंड बनाया गया तो वो सिमिलर फीचर्स का था जो कि नेचुरल डायमंड होता है उसके जैसा ही था बिल्कुल, बट जो बेसिक डिफरेंस उनमें आया वो था साइज डिफरेंस। साइज डिफरेंस आया किसमें था, मैन मेड और नेचुरल डायमंड में। बाकी फीचर्स सारे के सारे कैसे थे, सिमिलर थे, बट मैन मेड जो डायमंड फॉर्म किया गया था उसकी साइज क्या थी, स्मॉल, छोटी थी, छोटे डायमंड बने। जबकि नेचुरल डायमंड्स जो आपको मिलते हैं उनकी साइज क्या होती है, बिग, बड़े बड़े बन जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि आप एक्सपेरिमेंटली जब किसी चीज़ को कंडीशंस को प्रोवाइड करवा रहे होते हैं तो इतनी ज़्यादा एफर्ट लगानी होती है, उतना एफर्ट अपन नहीं लगा पाते जो नेचर प्रोवाइड कर देती है, उतना हाई प्रेशर अपन प्रोवाइड नहीं कर पाते,
हाई टेम्परेचर इतना मेंटेन नहीं कर पाते, तो थोड़े कार्बन को लेकर उन्होंने बनाया और उस पूरी प्रॉपर कंडीशन को प्रोवाइड करने के लिए और पूरी प्रॉपर कंडीशंस को कार्बन के ऊपर अप्लाई करने के लिए जब सोचा गया तो थोड़े ही कार्बन पे ये पूरी प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड कर पाए, इसलिए जो मैन मेड डायमंड का फॉर्मेशन हुआ वो थोड़े स्मॉल थे, जबकि नेचुरल कंडीशंस में बनने वाले जो डायमंड होते हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ के आपको मिल पाते हैं। ठीक है, तो ये हुई फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन। सेकेंड जो थी वो है ग्रेफाइट। देखिए जब सेकेंड कैटेगरी अपन डिफाइन कर देंगे उसके बाद अपन डिफरेंसेस देखेंगे डायमंड और ग्रेफाइट में। सो प्लीज कंसीडर ऑन द फीचर्स ऑफ द डायमंड एंड ग्रेफाइट ऑल्सो। सेकेंड कैटेगरी इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हैज ग्रे कलर, ग्रे कलर्ड कंपाउंड होता है, ग्रे कलर्ड कंपाउंड। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन द लेड ऑफ पेंसिल्स। आप जो राइटअप में पेंसिल्स यूज करते हैं उनकी जो लेड बनी होती है दैट इज मेड अप बाय द ग्रेफाइट। ग्रे कलर्ड होता है, स्लिपरी होता है, स्लिपरी इन नेचर, स्लिपरी होता है सो इट इज यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट। लुब्रिकेशन का मतलब आप जानते हैं जो किसी चीज़ को चिकना बना दे, स्लिपरी बना दे, दैट इज नोन एज अ लुब्रिकेंट। तो यहाँ पर ग्रेफाइट को एज अ ड्राई लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है, क्योंकि लिक्विड लुब्रिकेंट आप जानते हैं ऑयल वगैरह होता है उसको लिक्विड लुब्रिकेंट्स कहते हैं। तो ये ऐसा लुब्रिकेंट होता है जो कि ड्राई कंडीशंस के अंदर, अगर आपको ड्राई कंडीशंस में लुब्रिकेशन पैदा करना है, वहाँ पर आपको वेटनेस नहीं चाहिए या लिक्विफिकेशन नहीं चाहिए, तो उस कंडीशन में आप लुब्रिकेंट कौन सा यूज़ कर सकते हैं? ग्रेफाइट को एज अ लुब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट विल प्रोवाइड यू अ बेटर कंडीशन फॉर द स्लिपरीनेस। ठीक है, तो ग्रेफाइट को एज अ ड्राई लुब्रिकेंट आप यूज़ कर सकते हैं ड्यू टू द स्लिपरी नेचर। थर्ड जो इसका नेचर होता है, फर्स्ट इज ग्रीन कलर, सेकेंड इज स्लिपरी इन नेचर, थर्ड वन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए अपन ने पहले जब अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था तब अपन ने देखा था कि कार्बन कंपाउंड्स इज नॉट अ गुड कंडक्टर्स, दे आर कंसिडर्ड एज अ इंसुलेटर्स। देन व्हाई वी आर कॉलिंग ग्रेफाइट एज अ गुड कंडक्टर एंड विच फीचर ऑफ द ग्रेफाइट, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रेफाइट प्रोवाइडिंग इट एज अ गुड कंडक्टर एबिलिटी। बोथ ऑफ दीज कैरेक्टर्स ऑफ द graphite which is shown as a slippery in nature and good conductor of electricity, both answer you will check by its structure. How can you consider that it has slippery nature? How can you suggest that it has good conductivity? By the structure we can explain it. In the graphite, one carbon is attached with the another 3 carbons. Another 3 carbons, and as you know that if any carbon is bonding with the another 3 carbons, then one valency is left, because carbon has 4 electrons in the outermost shell, and for the completion of outermost shell it needs 4 another elements, right? For the completion of octet, complete octet, for the completion of stable mannered compound, it wants 4 another bondings, but in this structure we are attaching one carbon with the another 3 carbons. So in 3 carbons, any one, कोई सा भी ले लीजिए, any one will form double bond. एक के साथ किसकी फॉर्मेशन होगी? डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। जब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, जब अनसैचुरेशन, जो कि फर्दर ऑन अपन वर्सेटाइल नेचर में लेंगे कि ये जब बॉन्ड बनाता है तो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जिसमें जो सिंगल बॉन्डेड होता है उसे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहा जाता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले को अपन अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। सो वी विल टेक दिस टॉपिक इन द फर्दर टॉपिक। तो यहाँ पे जब ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा जो कि अनसैचुरेटेड होगा,
तो ये अनसैचुरेशन इसको क्या बनाएगा, दिस unsaturation will provide it good conductor ability, ये जो अनसैचुरेशन होगा दैट विल प्रोवाइड इट गुड कंडक्टर एबिलिटी। सेकेंड जो है स्लिपरी नेचर कैसे आया, स्लिपरी नेचर का जो रीज़न होता है, कॉज जो होता है जिसकी वजह से स्लिपरी नेचर शो करता है, उसका रीज़न है कि ये जब भी 3 कार्बन कंपाउंड्स के कार्बन एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बनाता है तो हेक्सागोनल अरे बनता है। हेक्सागोनल अरे का फॉर्मेशन होता है। कैसे, देखिए एक कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच्ड हो जाता है इस तरीके से, अनदर कार्बन भी क्या करता है 3 कार्बन्स के साथ अटैच हो जाता है। इस तरह से बनाइए, ठीक है, और इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है तो एक हेक्सागोनल अरे बनता है। ये हेक्सागोनल अरे जो बनता है वो लेयर्ड फॉर्म में बनता है, मींस ग्रेफाइट स्ट्रक्चर हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर, लेयर का फॉर्मेशन होता है, वो भी हेक्सागोनल अरेज की लेयर का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली मैं इसको इरेज कर देती हूँ इसके स्ट्रक्चर के लिए, इस तरीके की फॉर्मेशन होगी। ये एक हेक्सागोनल अरे हो गया, इससे फर्दर ऑन एक और हेक्सागोनल अरे आप अटैच कर सकते हैं लाइक दिस, इससे एक और हेक्सागोनल अरे आप अटैच कर सकते हैं। ऐसे एक और नीचे क्या बन जाएगी, लेयर बन जाएगी हेक्सागोनल अरेज की, इस तरीके से देखिए, राइट। और इन दोनों लेयर्स के बीच क्या होगी, अट्रैक्शन होगा, एक कॉमन अट्रैक्शन होता है, वीक अट्रैक्शन होता है। इतना वीक अट्रैक्शन होता है कि ये जो अट्रैक्शन होता है वो इन दोनों लेयर्स को फिक्स नहीं रख पाता, मीन्स बाय द स्मॉल अट्रैक्शन फोर्स दे विल bonded together, but this attraction force is not enough to make them stable, make them fix, inertia create नहीं कर पाएगा, so it will slip over to each other, एक दूसरे के ऊपर फिसलेगी, और जैसे ही फिसलेगी इसकी नेचर कैसे शो करेगी, स्लिपरी नेचर शो करेगी, और साथ में ब्राइटिश कलर, एक शाइनी कलर इसको प्रोवाइड करेगी। तो एक तरीके से इसको अपन एक्सेप्शन मान सकते हैं कार्बन कंपाउंड्स में, कि कार्बन कंपाउंड्स की तरह ये इंसुलेटर नहीं होता है, और मेटल्स जैसे शाइनी नेचर शो करती है वैसे ये शाइनी नेचर शो करता है। सो इट इज़ एन एक्सेप्शन इन द कार्बन कंपाउंड्स इन द नॉन मेटल्स विच हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स जस्ट लाइक दी मेटल्स, मेटल्स के जैसे इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो मेटल के जैसा होता है वो है शाइनी नेचर, शाइनी नेचर, शाइन करता है। आप चाहें तो एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, पेंसिल लीजिए अपने नेल पे या किसी भी जगह पे उसको चला के देखिए, एक जगह काफ़ी देर तक उसको रब करते जाइए, फिर उसको अगर आप थोड़ा सा फ्लैश के अंदर लेके जाएंगे तो वो शाइन करेगा, नेल के ऊपर लगा के देखेंगे तो वो शाइन करेगा, मीन्स इट हैज़ सम शाइनी नेचर। सेकेंड इज इट इज़ अ गुड कंडक्टर, इट इज गुड कंडक्टर। कैसा होता है, गुड कंडक्टर होता है। तो बोथ द नेचर्स ऑफ ग्रेफाइट शोज द सिमिलरिटी विद द मेटल्स, किसके साथ सिमिलरिटी शो करती है, मेटल्स के साथ सिमिलरिटी शो करती है, ठीक है। तो ये हुआ आपका सेकंड ग्रेफाइट। थर्ड जो एलोट्रॉप होता है दैट इज फुलरीन। फुलरीन कार्बन का थर्ड क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है। फुलरीन जो है सबसे पहले जब फ्लोरीन को देखा गया तो C60 फ्लोरीन को देखा गया था, उसके बाद 70 भी आ गया, बट सबसे फर्स्ट फ्लोरीन जो था C60 फ्लोरीन था। C60 का मीनिंग क्या है, C60 का मतलब है कि 60 कार्बन एलिमेंट्स एक साथ कंबाइन हो रखे हैं
और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज फुलरीन। ठीक है, कार्बन 60 जब बनता है तो जस्ट लाइक अ फुटबॉल, इसकी स्ट्रक्चर आती है फुटबॉल की जैसी। ठीक है, और फुटबॉल की जैसी जब स्ट्रक्चर बनती है तो इसमें कुछ बनते हैं हेक्सागोनल अरेज, कुछ बनते हैं पेंटागोनल अरेज। यानी हेक्सागोनल और पेंटागोनल अरेज का कॉम्बाइन होकर, कॉम्बिनेशन होकर, जिसमें से कुछ जैसे 32 और 18 का एक कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर आप जब फुटबॉल को देखेंगे तो उसमें देखेंगे 5 कोनों वाला एक बनता है पेंटागन, और हेक्सागन बनता है जिसके अंदर 6 कॉर्नर्स होते हैं। तो हेक्सागन और पेंटागन का दोनों का कॉम्बिनेशन बनके फुटबॉल का फॉर्मेशन होता है। तो इसके अंदर भी जब 32 हेक्सागन्स और 12 पेंटागन्स जब कंबाइन होते हैं तो एक C60 फुलरीन का फॉर्मेशन होता है। इट इज गिवन बाय द US आर्किटेक्ट, एक US के आर्किटेक्ट हुए थे बकमिंस्टर फुलर, बकमिंस्टर फुलर, बकमिंस्टर फुलर US आर्किटेक्ट थे। इन्होंने सबसे पहले C60 फुलरीन को देखा था, जस्ट लाइक अ फुटबॉल शेप एंड जस्ट लाइक अ जियोडेसिक डोम, एक डोम जो होता है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर जो होती है उसके जैसा ये लग रहा था। सो इट इज नोन एज, इन द ऑनर ऑफ बकमिंस्टर फुलर, इट इज नोन एज buckyball. Buckyball. Why we are calling it as a buckyball? Because Bucky is named in the honor of Buckminster, and ball because it has a structure of just like a football. And second name was given as a Fullerene in the honor of Buckminster Fuller by the surname. This name is given, right? So Fullerene has C60 carbon, hexagonal and pentagonal arrays. It also known as buckyball. It also known as Fullerene in the honor of discoverer who was US architect Buckminster Fuller. Now we are taking the difference between the diamond and Fullerene, diamond and graphite. Diamond and graphite. What is the difference between diamond and graphite? In this, one carbon is attached, one carbon will form the bond with another 4 carbons. डायमंड में एक कार्बन कितने कार्बन से बॉन्ड बनाएगा? 4 अनदर कार्बन से। एंड दिस वन कार्बन will form bond with another 3 carbon. ठीक है। सेकेंड, it has transparent appearance, कैसी अपीयरेंस होती है? ट्रांसपेरेंट, बट इट हैज ग्रे कलर। कैसा कलर होता है? ग्रे। नेक्स्ट, डायमंड इंसुलेटर होता है और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, good conductor of electricity. Next, it does not have unsaturation. It doesn't have unsaturation. But it has unsaturation.
राइट, यहाँ लिखती हूँ मैं. नेक्स्ट डिफरेंस, it has 3-dimensional structure and it has layering structure. It has layering structure of hexagonal array, right? These are the basic difference between the diamond and graphite. Done? Next, next is versatile nature of the carbon. We will already have some brief introduction about the versatile nature of the carbon. First is catenation, and third is tetravalency. Tetravalency. Today we will take catenation. Tetravalency in the next video I will give you explanation. What is catenation? Carbon has a unique ability to form larger compounds by the bonding with the another carbons. एक के बाद एक कार्बन जुड़ता जाएगा और एक बड़ा सारा एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा. तो ये एक यूनिक एबिलिटी होती है किसमें? कार्बन में. और इस यूनिक एबिलिटी को क्या कहा जाता है? कैटेनेशन. Basically, what is catenation? Catenation is a unique ability of a carbon in which carbon form a larger compounds by the bonding with the another carbons. यानी ऐसी यूनिक एबिलिटी जिसके अंदर कार्बन अपने जैसे दूसरे कार्बन्स के साथ बॉन्ड बना के बड़े बड़े लार्जर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है. उस यूनिक एबिलिटी को क्या कहा जाता है? कैटेनेशन. नो अनदर एलिमेंट shows just like the carbon ability. ये कैटेनेशन की जो एबिलिटी होती है वो कार्बन के अलावा किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर नहीं पाई जाती. एक एलिमेंट है सिलिकॉन. सिलिकॉन कैटेनेशन फॉर्म करता है, बट इसका जो कैटेनेशन होता है वो होता है 7 to 8 एलिमेंट. यानी सिलिकॉन के 7 से 8 एलिमेंट एक साथ कंबाइन होकर एक लंबी चेन का फॉर्मेशन कर देंगे. बट आफ्टर सम टाइम दिस कंपाउंड विल बी अनस्टेबल हो जाएगा और ये जो चेन बनेगी वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी. तो क्या कह सकते हैं कि कार्बन ओनली लगा सकते हैं बिकॉज नन अदर देन कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी जस्ट लाइक द कार्बन. So catenation is the unique ability which is shown by the carbon in the form of a longer chains in the form of a larger compound which is formed by the carbon with the bonding with another carbon compounds. Basically जब catenation का formation होता है तो कार्बन 3 तरीके के बॉन्ड बनाता है. कार्बन का सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म होता है, कार्बन का डबल बॉन्ड भी फॉर्म होता है और कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म होता है. यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है. कार्बन सिंगल बॉन्ड, इफ एनी कंपाउंड हैज सिंगल बॉन्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग विद द कार्बन, देन सच टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के अंदर 3 तरीके के बॉन्डिंग वाले कार्बन कंपाउंड्स होंगे. सिंगल बॉन्ड के हो सकते हैं, डबल बॉन्ड के हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के हो सकते हैं. तो कार्बन कंपाउंड्स अगर इस तरीके की बॉन्डिंग शो कर रहे हैं तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड्स विल बी नोन एज सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स. सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स which have single bond. सिर्फ सिंगल बॉन्ड जिनमें होगा वो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होंगे. जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे वो क्या कहलाएंगे?
unsaturated carbon compounds. Unsaturated carbon compounds. Right? In the next video, we will take the tetravalency. You all are well known about the tetravalency, that carbon has 4 valencies due to the presence of 4 electrons. But we will take it as a explanation manner, and we will take some examples of it also. But today we already have done allotrope of carbon, versatile nature, one versatile nature we have done. In the allotrope of carbon, 3 allotrope crystalline form, especially crystalline form. We are not taking the non-crystalline form of carbon compounds and carbon allotrope. In the crystalline carbon allotropes, we are taking 3 categories: diamond, graphite and fullerene. Diamond has 3-dimensional structure, it is the hardest compound, it has insulator nature, and graphite, it is a good conductor of electricity, it has layerious structure by the made up of hexagonal arrays, and fullerene, it has a football like shape. And after that, versatile nature, catenation, larger compounds का formation by the carbon compound with the bonding with the another carbon compound. This unique ability is known as a catenation, and during the catenation it will form 3 type of bonds: single bond, double bond and triple bond. In the single bond it will show saturated carbon compounds, and in the double and triple bond it is known as unsaturated carbon compounds. इस चैप्टर जो भी अपन ने टॉपिक्स लिए हैं उसके बेस पे आपको पीछे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे कार्बन के, तो वो आप करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो के अंदर अपन ने कार्बन कंपाउंड्स का मीथेन का स्ट्रक्चर बनाया था, वैसे ही डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए इथीन का स्ट्रक्चर है, ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए इथाइन का स्ट्रक्चर है. You will form that, you will try to form that. If you are having any problem, then you may discuss on my WhatsApp number. Thank you so much and have a nice day.